अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता B.K. गोलो, हेड ऑफ प्रोजेक्ट इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आबू रोड। वाकई में आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। आपके आने से खिल गया है आंगन, आपके साथ से झूम उठा है गगन। आप हो इसीलिए खुश है सारा चमन, और आपके मधुर वचन सुनने को उत्सुक है हर मन। भ्राता गोलो। Om Shanti. Dear respected brothers and sisters on the dais, and dear respected brothers and sisters in the audience, I'm very pleased to be here today and to attend the 80 years anniversary of the Brahma Kumaris. I came first time to Mount Abu in 1985. And our headquarters was very small in Mount Abu. It was a very small place. And the development and the achievement we have seen in the last 30 years are really a wonder. And I really like to congratulate the Brahma Kumaris for these achievements and for the progress it had done in the last 30 years. Myself, I have benefited to a great extent on the teachings of the Brahma Kumaris on yoga and meditation, and it helped me a lot to change my life, to change my attitudes, and to become a better person. So congratulations to the Brahma Kumaris for all these achievements. In the inaugural address, our Prime Minister Modi has mentioned the success of the renewable energy projects within the Brahma Kumaris. And my previous speaker has mentioned also about climate change, which is one of the biggest problems in the world. And we all in India, we can face it because it is garam garam. It is getting very hot. And the good news is that Brahma Kumaris is actively engaged in the last 10 years in the climate negotiations. We have an environmental initiative, and we are participating at all the UN climate conferences, and we're trying to build a bridge between consciousness, spirituality, our lifestyle, and climate change. In order to deal with climate change, we all have to change ourselves. I also like to share the good news that Brahma Kumaris is one of the largest institutional users of solar energy. We have started almost 25 years ago with the research and development of renewable energy projects. And the Brahma Kumaris and its daughter organization, the World Renewable Spiritual Trust, is a recognized solar research center with the government of India. And since then, we have done many research projects. We have installed solar steam cooking systems, and your food you're eating is partly cooked by sun, by solar energy. The electricity in this hall for this microphone is coming partly from solar energy. And some of you might have seen our India One solar project, which is just operational since 1 month. And some of the electricity which we are sending to the campus is also coming from this innovative new solar power project, which we are constructing under financial help from the German government and from the Indian government, from the Ministry of New and Renewable Energy Sources in New Delhi. All these projects we are conducting in the field of science have a special aim. Our aim is to build a bridge between science on one side and spirituality on the other side. Science has done a lot of progress in the last 150 years, but now we can see also all the problems it has caused. We have air pollution, environmental pollution, and the future of our planet is in danger. It is the understanding of the Brahma Kumaris institution to bridge the gap between science
and spirituality. And we believe that spirituality can be the key to help all of us to change our inner world, to change our attitudes, our consciousness, our behavior, and thus bring ethics and values back into science. Because the world needs yogis, because yoga is the key for transformation, and it is my firm understanding that spirituality and my inner strength of my thoughts shapes the outer world and the physical reality. If we imbibe spiritual qualities like love, compassion, and happiness, we are all together able to change this world and make it a better world. You all know that Mahatma Gandhi once said, "Let us all bring jointly Ram Raj back to this planet." So you please all join hands in this task to bring Satyuga back to this world. And I'm very proud to be since 30 years associated with the Brahma Kumaris. I have benefited a lot. I wish this institution all the best for the future. And I'm very glad that you all have come here together to celebrate the 80 years. I hope you took some inspiration, you got some idea about meditation, and you will start practicing in the morning and in the evening for 5 minutes and become a change maker, a change to the positive. Thank you very much, and Om Shanti. बहुत सुंदर कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो वाकई में जब हमने आईना साफ किया तो मैं नज़र आया, और जब मैं को साफ किया तो प्रभु आप नज़र आए। यही गोलो भाई के जीवन का अनुभव है कि उस गॉड से उनकी मुलाकात हो गई तो उनके अंदर इनर पावर जागृत हो गई। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता मिस्टर संतोष भारतीय जी को, जो एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया के हैं। आपके लिए यही कहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। भ्राता संतोष भारतीय, एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया। दादी के पास जाकर सर पे हाथ रखवाने की जिद मैंने की, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक चीज़ साफ कर दूँ, मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूँ। ब्रह्म कुमारियों के इस आंदोलन से मेरा मन के अलावा कृति में दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। मैं 26 तारीख को जब यहाँ आया, संयोग से उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो अक्सर होता है दादी पत्नियों को बहुत कुछ चाहिए, तो हमारी श्रीमती जी भी आई थी। उन्होंने अदिति बहन से कहा कि जानकी दादी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा। दादी शायद थक गई थी, तो उन्होंने ईशु दादी से रात में 10 बजे का समय लिया। अब मैंने कहा कि इतनी बुज़ुर्ग, मुझे अंदाज़ था कि शायद 80 साल की होंगी। हम उनके यहाँ गए 91 साल की, बिना झुर्रियों का चेहरा, और ऐसे ही मैंने ज़िद की जैसे दादी से की। वो मुस्कान और वो हंसी निश्चल जो बच्चे के मुंह पर ही होती है। दादी ने मेरे सर पर 1 बार हाथ रखा, 2 बार हाथ रखा, 3 बार हाथ रखा, और मुझे लगा कि कहीं कुछ मेरे शरीर में सिहरन हुई है। तो मैं 27 तारीख को माउंट आबू गया। बहुत छोटी घटना है, लेकिन शायद ब्रह्मा बाबा का इशारा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। वहाँ मैं पीस पार्क गया। पीस पार्क में देखा, बैठने की इच्छा हो गई, बैठ गया वहाँ पे। ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली,
नज़र उठा के देखा, बाहर बालू पत्थर सूखा, ऐसे लगा जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा, उसका छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर लोगों ने बना के रख दिया हो। अब मेरे मन में सवाल हुआ कि ये इंसानों ने बनाया है या देवताओं ने? क्योंकि अगर इंसान बनाते तो आसपास भी बालू है, पत्थर है, वहाँ भी ऐसा ही होता। तो इस ज़माने में देवता तो आ नहीं सकते, इसलिए लगा कि ये मानवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोगों ने बनाया है, इसलिए इसके पीछे कोई ख़ास चीज़ ज़रूर होगी। वहाँ से उठ कर के मैं पांडव भवन गया, बाबा के कमरे में गया। बाबा के कमरे में बैठा उनके पास, तो मैंने वहाँ पांडव भवन और पीस पार्क के बीच में चलते हुए मैंने अपने एक साथी से कहा, यार मुझे लगता है कि ये पूरा इलाका, ये तो सचमुच स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग जैसा तो बन सकता है। अब मैं वहाँ बैठा जब बाबा के सामने आंख बंद करके, मेरे अंदर से कोई मुझे हिला रहा था, तुम जो सोच रहे हो उसको कहो। मेरे मन ने कहा, मैं क्यों कहूँ, मेरा क्या लेना देना इससे। पर मन एकदम जैसे उद्वेलित हो गया, कोई आदमी खड़ा होकर आपको हिला रहा हो। रात में वहाँ से मैं फिर ज्ञान सरोवर गया। ज्ञान सरोवर में मैंने अपने साथियों से कहा कि नहीं, नीचे चलो यहाँ पर शांतिवन में, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर मुझे भी कुछ कहा गया था कि मैं स्टेज के ऊपर रहूँ। मैं वहाँ बिना रात काटे हुए, इतनी अच्छी जगह, मैं नीचे आ गया। रात भर नहीं सो पाया, मन कह रहा था कुछ कहो, तो कहूँ तो किससे कहूँ, कोई था नहीं जिससे कुछ कहूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं इस बात को जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तब मैं कहूँगा। लेकिन 28 तारीख को मैं मंच पे था, सर के आशीर्वाद भी दिया यहाँ बड़ों ने, मृत्युंजय भाई भी यहाँ पर थे, निर्वैर भाई भी थे, सबने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। अब मैं परेशान हुआ कि बोलने का मौका तो मिला नहीं, अब मैं इस बात को कहूँ कैसे। पर मन के अंदर कोई कह रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कौन कह रहा है कि कुछ कहो, कुछ कहो, जो सोच रहे हो उसको कहो। अब मैं ये बात अपने साथियों से भी नहीं कह सकता था। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुमको खामोखा की एक चीज़ मन में आ रही है, कहो कहो कहो। अदिति जी से मैंने कहा कि ये बड़ा बुरा हुआ, मुझे बुरा लगा कि मंच पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं था। उन्होंने आज जो टेलीविज़न चलता है उस टेलीविज़न में मेरा प्रोग्राम करवा दिया। एंकर ने जब पूछा, मैंने अपने मन की बात उनसे कही कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है। वहाँ से मेरे मन में जिद हुई कि मैं घुसूँ इस कार्यक्रम के भीतर, और वहाँ से मृत्युंजय भाई बैठे हुए हैं, मैं इनके पास आ गया। मैंने जिद की, ये मेरे मन में लग रहा है, और मुझे लगा ये बिल्कुल मना कर देंगे कि आपका कोई लेना देना इससे नहीं है, आप चुपचाप आए हैं, वैलिडिटी सेशन में भाग लीजिए और शाम को आप अपने घर जाइए। पर मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा और मैंने जिद की कि ये प्रस्ताव मैं ही रखूंगा वैलिडिटी सेशन में। मैंने इनको प्रस्ताव बताया, ये उसको मान गए, और न केवल मान गए बल्कि वो इस प्रस्ताव को कैसे पूरा हो इसके बारे में मुझसे आगे सोचने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसके पीछे मुझे लगता है कि बाबा का इशारा है, और ब्रह्मा बाबा ने मुझे इसका माध्यम बनाया है कि मैं ये बात आपके सामने रखूं। नहीं तो मैं संतोष भारतीय, एक अखबार का में काम करने वाला एक पत्रकार, ब्रह्म कुमारियों की इतनी बड़ी सभा में 80वें जन्मदिन की, जहाँ पर देश भर से 10,000 से ज़्यादा लोग आए हों, उनके बीच में ज़िद करूं, मुझे ये जानते नहीं, 1-2 बार मुलाकात हुई, और मुझे प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दें। तो मुझे लगा बाबा का इशारा है, मुझे कहना चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया है, और पर मृत्युंजय भाई ने मुझे कहा है कि जब किरण जी यहाँ पर आ जाएं, किरण बेदी जी, तब मैं इस प्रस्ताव को रखूं। मैं प्रस्ताव तो ठीक है,
मृत्युंजय भाई फिर रख दूँ प्रस्ताव बाद में रखें? मैडम के सामने रखें तो ठीक है, जैसा कहें वो। तो मैं मैडम के सामने ये प्रस्ताव रखूंगा, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। अठावले जी, ये प्रस्ताव जब मैं रखूंगा, मैंने शुरू में साफ किया कि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूँ। इस प्रस्ताव को रखने के पीछे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चलाने वालों का कोई हाथ नहीं है, उनकी कोई प्रेरणा नहीं है। मैं किसी की तरफ से ये प्रस्ताव नहीं रख रहा हूँ, मैं ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रख रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा है कि मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रखूँ। अगर आपको लगता है कि इस प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, एक पत्रकार का पागलपन समझ करके मेरी बात को भूल जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि इस प्रस्ताव में दम है, तो जब किरण जी यहाँ पर आ जाएं, रामदास जी हमारे इतने संघर्षशील आदमी हमारे बीच में बैठे हैं और इतने कमाल के आदमी हैं कि ऐसे लड़ने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं नहीं, और वो भी वंचितों के लिए। इनकी उपस्थिति में जब भी मैं ये प्रस्ताव रखूं, तो याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो खड़े होकर ताली बजाकर ब्रह्मा बाबा के सम्मान में, इसके समर्थन में अपना मत दीजिएगा। और अगर ना अच्छा लगे, बिना कुछ कहे हुए मुझे भूल जाइएगा कि मैंने क्या कहा। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, इस आशा से कि मुझे दोबारा इस प्रस्ताव को रखने के लिए आपके बीच में आने का मौका मिलेगा। ओम शांति। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में अभी चीफ गेस्ट ऑनरेबल रामदास बंधु आठवले जी उपस्थित हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि बैचेस व गुलदस्ते के द्वारा आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। दिल की भावनाओं के साथ तालियां बजनी चाहिए उस प्रभु के लिए भी जिन्होंने ऐसी रचना रची है। जिस प्रभात से प्रभु का सिमरण हो जाए वो प्रभात सुप्रभात हो जाती है, और जिस शाम में प्रभु का स्मरण हो जाए वो शाम शुभ शाम हो जाती है, शुभ शाम हो जाती है। अभिनंदन, स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहुत ही सुंदर अनुभूति कराने के लिए राजयोगिनी बीके पूनम दीदी जी को, सब जोन हेड ब्रह्मा कुमारीज जयपुर। वाकई में दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, पर भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। इसी मेडिटेशन की एक्सपीरियंस की अनुभूति की ओर हमें ले चल रही हैं आदरणीय पूनम दीदी जी। ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित बहनों भाइयों, हम 3 दिन से मेडिटेशन राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। मन की पवित्रता और मन की शक्ति का हमें विकास करना है, तो मन के अंधकार से मुक्त होना होगा। और इसकी विधि है ज्ञान और गुणों के प्रकाश को भीतर लाना। जो हम रोज़ अभ्यास करते हैं और
उससे अनुभूति भी करते हैं। वास्तव में इस मेडिटेशन राज्यों के जो लाभ हैं, मन की चंचलता, अस्थिरता समाप्त हो, उसके लिए आज हम करेंगे प्रयास आत्मचिंतन का। क्रोध को कम करना है तो मन की शांति को विकसित करना होगा, तो हम शांति का चिंतन भी आज करेंगे। और तीसरा लाभ, भय, चिंता, असुरक्षा की भावना को समाप्त करना है, तो सर्वशक्तिवान परमात्मा से मन की तार जोड़ेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति को, अंदर के विश्वास को जागृत करेंगे। इन 3 बिंदुओं पर अभी मैं आपको कुछ विचार दूंगी। आप सब एकाग्रचित होकर सुनेंगे। कृपया सीधा बैठें, कमर सीधी रखें और ध्यानपूर्वक श्रेष्ठ चिंतन में मगन हो जाएं और बाह्य जगत से नाता तोड़कर अंतर जगत की ओर आएं। अंदर में मैं प्रकाश पुंज, आत्मा, ज्योति स्वरूप, अविनाशी शक्ति हूँ। 5 तत्वों के बने शरीर से न्यारी, ऊर्जावान ज्योतिपुंज। ये देह मुझ आत्मा का वस्त्र है, जो मैंने कार्य करने के लिए लिया है। मैं इससे अलग हूँ। मेरा मन और बुद्धि पर शासन है। मैं आत्मा, राजा, इंद्रियों की मालिक, अधिकारी हूँ। तो मेरे अंदर संयम, अनुशासन विकसित होता है। मैं आत्मा इंद्रियों द्वारा कार्य लेने वाली अविनाशी चैतन्य शक्ति। मेरा आदि स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है। पवित्र विचारों में मन की शांति है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मेरा दिव्य स्वभाव है। शांति मेरी शक्ति है। शांति मुझ आत्मा का खजाना है। शांति मेरी संपत्ति है। मुझे दिमाग ठंडा, मन शांत, वाणी शीतल, मधुर बनानी है और शांति के विचारों से शांति के कार्य करने हैं। मन की चंचलता, कर्म इंद्रियों की चंचलता शांति की शक्ति से काबू हो जाती है। मैं शांति की मूर्ति, शांति सागर परमपिता परमात्मा की संतान, ब्रह्मांड से, शांति धाम से शांति की किरणें नीचे आ रही हैं।
और मुझ आत्मा में समाती जा रही है। परमात्म प्रकाश, परमात्म शक्ति से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। उनकी पावन किरणें ये मेरी छत्र छाया बन गई हैं और बाबा की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ। अपनी सारी जिम्मेवारी, सारी चिंताएं, बोझ मैंने बाबा को दे दिए। परमात्म पालना, ज्ञान योग की पालना में पलने वाली, उड़ने वाली, उमंग उत्साह से भरपूर मैं उड़ता पंछी। मुझे बाबा ने अपने नैनों में समाया है। उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझ पर पड़ गई है। अब मेरा भाग्य उज्जवल है। भाग्य विधाता का हाथ मेरे सिर पर है। तो मैं आत्मा खुश हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझे परमात्म ज्ञान और जो राजयोग की शिक्षा मिली है उससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, सद्गुणों का विकास करना है और स्वपरिवर्तन से विश्व में परिवर्तन लाना है। अनेक आत्माओं को भी ये संदेश देना है। अब यही मेरा कर्तव्य है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभूति अभी हमने की। वाकई में पूरी सभा पवित्रता की खुशबू से सराबोर हो गई। मैं भी आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी को। संतोष दीदी जी हमें संतोष के उमंग उत्साह से भरपूर करेंगी। आदरणीय संतोष दीदी जी, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज महाराष्ट्र जोन। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय दीदी संतोष जी को, क्योंकि बाबा के साथ का अनुभव आपने बहुत ही गहराई से दिव्यता के साथ किया है। तो हमारे भ्राता आठौले जी भी उनके अनुभव को सुनकर उस अनुभूति की गहराई में उतरेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय मंच और उपस्थित भाई बहनों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने। अभी हम हमारे संतोष भाई के द्वारा ये भी सुन रहे थे कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ। ये बोलते बोलते उन्होंने 3 बारी तो ब्रह्मा बाबा बोल दिया। अभी आप ही बताइए, जब भी ब्रह्मा उनका बाबा है तो वो जरूर ब्रह्मा कुमार हो गए। तो जिस प्रकार निराकार परमात्मा शिव ये सर्व आत्माओं का पिता है, उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा भी सर्व जीवात्माओं का पिता। इसीलिए उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, एडम कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है।
हम लोग शास्त्रों में भी सुनते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प उठा और उसने सृष्टि रची। तो ये हमने अपने आँखों से देखा, अपने जीवन में अनुभव किया कि एक ब्रह्मा बाबा ने जब परमात्मा शिव ने उनको संकल्प दिया नई सृष्टि रचने का, स्वर्ग बनाने का, जब उनको शुरू में साक्षात्कार कराया कि नई दुनिया जो स्वर्ग है, श्री कृष्णपुरी है, जो राम राज्य है, वो तुम्हें ही रचना है, तुम्हें ही बनाना। ये संकल्प आते ही उन्होंने अपना तन मन और धन सब ईश्वरीय कार्य में लगा दिया और ईश्वरीय कार्य में लगा करके अपने साथ इतने लाखों के अंदाज में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को भी तैयार कर लिया, जो सृष्टि के परिवर्तन में सहयोगी बन गए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है कि ये जो पुरानी दुनिया है, इसको नया बनाने के लिए हमें सर्व को योगदान जरूर देना है, क्योंकि यहाँ का स्लोगन ही ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हमें विश्व परिवर्तन करना है तो पहले खुद का परिवर्तन जरूर करना है। जब तक हम खुद का परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने हम सबको प्रैक्टिकल में करके बताया कि किस रीति से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता। परंतु स्व का परिवर्तन जो है उसका आधार है विचार और अपना दृष्टिकोण। अगर हमारे विचार बदली हो जाते हैं, हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ विचार पैदा होते हैं, पॉजिटिव विचार पैदा होते हैं, तो हम जैसा सोचते हैं उस रीति से बन सकते हैं। और इन विचारों को परिवर्तन करने से ही हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं। संस्कार परिवर्तन होने से सारा संसार परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए संसार को परिवर्तन करने के लिए विचारों को परिवर्तन करना है, और उन विचारों को परिवर्तन करने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान सिखाया जाता है। अभी हमारे बीच में हमारी अति स्नेही बहन ऑनरेबल उपराज्यपाल किरण बेदी जी उपस्थित हो चुकी है। सभा में सभी खड़े हो जाएंगे। अभी उनके सम्मान में और हमारे देश के सम्मान में नेशनल एंथम होगा। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम के लिए सभी तैयार हो जाएं। नेशनल बाद में कंटिन्यू करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
जय हे जय जय भारत माता की। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता मृत्युंजय भाई जी को स्वागत के लिए ऑनरेबल उपराज्यपाल किरण बेदी जी की एवं साथ ही हमारे अतिथि रामदास बंधु आठवले जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास में वह 80 साल की वार्षिक उत्सव की समारोह में एक ताज की मणि, एक डायमंड हॉल में उपस्थित है। ऐसी डायमंड आदरणीय दीदी किरण बेदी जी को हम सभी जोर से ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। एक ऐसी महिला शक्ति है, ऐसी शिक्षक है, ऐसे डिसिप्लिन सोसाइटी का एक आदर्श नारी है और इस भारत की गौरव स्त्री रत्न है। सर्वप्रथम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू जॉइन आईपीएस, हम सबके लिए गौरव की बात है। दूसरा जाए फर्स्ट पुलिस ऑपरेटर टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी एंड योगा इन जेल्स, विशेष करके तिहाड़ जेल में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शाखाओं को बुला करके उन्होंने वहाँ शिक्षा देने के लिए शुभारंभ किया। और रेसिपिएंट ऑफ द मेगासे अवार्ड हम सब की भारत के लिए गौरव है। महिला शिरोमणि अवार्ड 1995 में प्राप्त करके हमारे भारत की गौरव को इन्होंने ऊंचा बनाया। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 1999 में प्राप्त करके इस भारत का एक उच्च स्तर के लिए अभिमान बनाया। मदर टेरेसा मेमोरियल नेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, अभी हमारा सोशल जस्टिस के मंत्री महोदय जी भी है, इन्होंने पहले इस अवार्ड प्राप्त करके देश की एक नया ऊर्जा प्रदान किया, एक शक्ति प्रदान किया। ऐसी महिला को, ऐसी महामहिम को, ऐसी आदरणीय बहन को हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व परिवार की तरफ से, समस्त इधर आए हुए भाई बहनों की तरफ से, आदरणीय दादी जानकी जी की तरफ से, हृदय मोहिनी जी की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और ऐसी यादगार समारोह है, 80 साल का वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव में और एक मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री रामदास बंधु अटवाले जी है, भारत सरकार की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मंत्री जी है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत स्नेही हैं, बहुत सहयोगी है। जब भी हमारा बहन है इसको किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तुरंत हाँ जी के पाठ बजाने वाले, हाँ जी की ऐसा भाता जी हमारा सब के उपस्थित है। ऐसे भाई जी को हम लोग प्राप्त करके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और भले उनकी महाराष्ट्र से है परंतु इसका स्नेह सारी भारतवासियों से, सारे विश्व के प्रति, आत्मा के प्रति है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे पर कंधे लगा करके भारत को सोशल जस्टिस दिलाने में, वुमेन एम्पावरमेंट में और भारत को नया न्यू इंडिया बनाने के कार्य में लगे हुए ऐसे भाई जी को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अनेक समस्त भाई बहनों ने इधर और भी
महारथी भाई लोग इधर उपस्थित है, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अधिक समय ना लेते हुए आप सबको मैं बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते। अभी हमारी संतोष दीदी जी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि अभी हम उनके आशीर्वचनों से भरपूर नहीं हुए हैं, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी को। ओम शांति। आदरणीय बहन किरण बेदी जी, क्योंकि वो भी शिव शक्ति है और इस शिव शक्ति के परिसर में आपका आगमन हुआ, इसीलिए और भी इस प्रोग्राम को 4 चांद लग गए। हम ये सुन रहे थे कि विचारों के परिवर्तन से सारे संसार को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि एक ब्रह्मा बाबा के संकल्प ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया समाज के अंदर। तो यहाँ पर जो भी बैठे हैं, अगर सब ये दिल से अपने साथ एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें परिवर्तित होकर के सारे विश्व को, खास भारत और सारा विश्व, इनको परिवर्तन करने के लिए अपना योगदान देना, तो अगर सारे दिनचर्या में से थोड़ा सा समय अगर हम इस कार्य में लगाते हैं, तो उससे हमारा भी फायदा होता है और समाज का भी फायदा होता है। क्योंकि सिर्फ हम खुद के लिए जीते हैं तो ये जीना नहीं है, परंतु औरों के लिए जीना वास्तव में यही जीना है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही सिखाता है कि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को परिवर्तन कीजिए, राजयोग के द्वारा अपने अंदर ऐसी शक्ति धारण कीजिए जिस शक्ति के आधार पर हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकें। बहुत व्यक्ति ऐसे समझते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता का विषय है ये फुर्सत के समय का है, परंतु ये ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान और जो योग है, इसको इस चीज़ की हर एक व्यक्ति को आज आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि समय ये परिवर्तनशील है, समय ये बदलता रहता है। कहा जाता है सब दिन होता न एक समान। जिस समय पर हमारे फेवर में समय चलता है तो हम बड़े खुश रहते हैं, परंतु जब कोई भी बात हमारे मन पसंद नहीं होती है तो हम अपसेट हो जाते हैं। सदैव हमारी स्थिति ऊंची रहे, हमारे द्वारा शांति के और शक्ति के वाइब्रेशन फैलते रहे, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ही जीवन में आवश्यकता है कि परिस्थिति भले बदले, परंतु हमारी स्वस्थिति कभी न बदले। जब इन छोटी छोटी बातों को हम समझ लेते हैं, समझने के बाद उसको जीवन में धारण कर लेते हैं, तो इससे समाज को भी फायदा होता है, हमें खुद को भी फायदा होता है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 80 बरस से ये अविरत कार्य कर रहा है, जो मनुष्यों के जीवन में दिव्यता ला करके, दिव्य गुणों की धारणा करा करके उसके जीवन को पवित्र और योगी बना रहा। तो हमें आज बड़ा हर्ष है कि ये जो 80 बरस का हम महोत्सव सब मिल कर के मना रहे हैं, इसमें हम सब ये खास विशेष स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, इस स्लोगन को जीवन में लाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और अनेकों को भी बढ़ाएंगे। और जो शिव पिता की इच्छा है
प्रेरणा है, उनका जो डायरेक्शन है, किस दुनिया को बदलना है और पुरानी दुनिया से नई दुनिया लानी है, स्वर्णिम युग लाना है, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय संतोष दीदी जी का। आपके सामने अभी हमारे संतोष भाई बहुत ही सुंदर हम क्या प्रेरणाएं यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको प्रस्तुत करेंगे। दादी, आपने कहा कि 3 बार मैंने ब्रह्मा बाबा का नाम लिया और ये भी कहा कि मैं ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, सर्टिफाइड ब्रह्म कुमार नहीं हूँ, बिना सर्टिफिकेट का ब्रह्म कुमार हूँ। और मृत्युंजय भाई, एक चीज़ आपको बता दूँ, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पद से नहीं जाने जाते, जो अपने संघर्ष, जीवट, अदम्य साहस से जाने जाते हैं। जब कोई पद नहीं था तब किरण बेदी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक नाम सबकी ज़ुबान पे होता था। और संघर्ष का अगर दूसरा नाम कोई है वंचितों के लिए संघर्ष का, तो आपके पड़ोस में बैठे हैं रामदास अठावले जी, आप दोनों को मेरा प्रणाम। मैंने निर्वैर भाई और बीएम भाई, ब्रिजमोहन भाई, आपके आने से पहले मैं कई अपना अनुभव बता चुका हूँ। मैं एक प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ जो मेरे मन में कहाँ से आया मैं नहीं कह सकता, शायद कोई ताकत है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये बाबा की प्रेरणा हो सकती है, पर मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ों में मेरा भरोसा थोड़ा कम होता है। पर कुछ चीज़ है जो मुझे लगातार ठेल रही है और मैं ज़िद करके मृत्युंजय भाई से यहाँ पर आया हूँ प्रस्ताव रखने। प्रस्ताव, मैं संतोष भारतीय, संपादक चौथी दुनिया, ये प्रस्ताव करता हूँ कि भारत और संपूर्ण विश्व से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80वें वार्षिकोत्सव में आए 10,000 से अधिक प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि वो माउंट आबू शहर को देश और दुनिया का पहला आध्यात्मिक शहर घोषित करें। और ब्रह्मा बाबा की प्रेरणानुसार इसे प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर विकसित किया जाए। यहाँ ऐसा वातावरण बने ताकि लोग आध्यात्मिक तौर पर स्वयं का विकास कर देश में नई ऊर्जा के निर्माण में सहयोग दे सकें। यह काम हम आध्यात्मिक शक्तियों के सहयोग से करेंगे। ये सम्मेलन का प्रस्ताव। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस शहर को जीव हिंसा और शराब से मुक्त क्षेत्र बनाकर वैश्विक फिर पढ़ता हूँ। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस शहर को जीव हिंसा और शराब से मुक्त क्षेत्र बनाकर वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने की अनुमति दें। हम इस महान कार्य को जनता और शासन के सहयोग से करेंगे। इसे आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के विकास के लिए सभी आधारभूत ढांचा तैयार करने की स्वीकृति दें। इसे भी हम आपके दिशा निर्देश में करेंगे। विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर को दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे पर महत्व देते हुए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम वचन देते हैं। माउंट आबू को आध्यात्मिक शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का हम वचन देते हैं। महिलाओं और नौजवानों को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में हम पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे ये शहर पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन सके। यह सारे और इससे जुड़े कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने स्वयं तथा सहयोगियों के साथ करना चाहता है। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस अभूतपूर्व प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति व सहमति देकर इसे सफल बनाने में योगदान देंगे।
अभी तक ये संतोष भारती की तरफ से प्रस्ताव है, अगर आप इसे पास करेंगे तो ये आपका प्रस्ताव हो जाएगा। खड़े होकर लोग समर्थन कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि पहले मृत्युंजय भाई इसके ऊपर इसको सेकंड कर दें ताकि ऑफिशियल हो जाए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, और फिर रामदास भाई अठावले जी कुछ कहना चाहेंगे, वो इसके ऊपर क्या कहेंगे ये तो वो जाने, पर उनसे हम समर्थन की उम्मीद अवश्य करते हैं। जो आदरणीय भ्राता संतोष भाई के माध्यम द्वारा ये प्रस्ताव हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि इस प्रस्ताव को हम सभी 125 करोड़ भाई बहनों को दिल में विराजमान करने वाले और सारे विश्व की दिलों में चक्रवर्ती के रूप में विराजमान करने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा भारत सरकार के सभी मंत्रिवर्ग और भारत की जनता के सहयोग से हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको आश्वासन दिलाते हैं, माउंट आबू को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी बनाएंगे। अभी बहुत आईटी सिटी, स्मार्ट सिटी आदि आदि बन रहे हैं, परंतु भारत में स्पिरिचुअल सिटी अभी तक एक भी नहीं है। रिलीजियस सिटी बहुत है, परंतु स्पिरिचुअल सिटी ऐसा बनाएं ताकि सारी दुनिया को ऊर्जा मिले, सोल एनर्जी मिले। सोलार एनर्जी के बारे में बात करते हैं, परंतु सोल एनर्जी के बारे में हम लोग भूल गए हैं, परंतु सोल एनर्जी को प्रदान करने वाला स्वयं परम शिक्षक इस धरा पर अवतरित है और साथ साथ में इस ईश्वरीय विश्व इसी शिक्षा को लेकर के विश्व के कोने कोने में यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फैला रहा है, परंतु इसको और भी विशाल रूप देने के लिए हम भारत सरकार के भी अनुरोध करते हैं, राज्य सरकार से भी अनुरोध करते हैं। हम भारत को फिर भी वर्ल्ड लाइट हाउस एंड माइट हाउस बनाने के कार्य में हम सफल होंगे, परंतु इस कार्य में हम कंधे से कंधे लगाकर सेवा के लिए हम सदा संलग्न हैं, ये विश्वास के साथ साथ आश्वासन मैं देता हूँ। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ इस प्रस्ताव के साथ साथ अपना वक्तव्य भी देवें। यहाँ सम्माननीय महामहिम पांडिचेरी की गवर्नर और आपकी सबकी लाडली नेता श्रीमती किरण बेदी जी मंच पर मौजूद है। यहाँ जो अभी राजयोगी बीके मृत्युंजया, उसके साथ साथ बीके ब्रिज मोहन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, हमारे एडिटर इन चीफ छोटी दुनिया के हमारे मित्र मिस्टर संतोष भारतीय, राजयोगी बीके संतोष बहन, ए मर्चेंट, मैनेजिंग ट्रस्टी बीके निर्वायर और सभी भारत के कोने कोने से और पूरी दुनिया से जहां 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर्स है और 80 साल पूरे हो रहे हैं। मतलब 1937 में जब अपना भारत देश आज़ाद नहीं था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश जब भारत में ही था, तब 1937 में ये संस्था की स्थापना हुई और यहाँ ये जो सेंटर बना ये 1950 में बना। और जो माउंट आबू है ये पहाड़ी इलाका है। ये कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन है हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर किया और इस संस्था को हार्दिक बधाई दी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी मेडिटेशन करते हैं, मन शांत रखते हैं, मन को शांति मिलनी चाहिए। और जो आदमी अपने मन को शांति नहीं दे सकता है वो दूसरों को क्या शांति देगा। तो मन की शांति जो है ये मन को शांत रखने का काम करना चाहिए। मन में जो गुस्सा है, अहंकार है, उसको खत्म करना चाहिए। मेडिटेशन के माध्यम से बहुत सालों से ये काम चल रहा है और हमें गर्व है कि आप जैसे सैक्रिफाइस करने वाले लोग, राजयोगी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा मेंबर आपके हैं, कम से कम 8,000 सेंटर अपने भारत में है। जहाँ जहाँ भी जाते जब वहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सेंटर दिखाई देता है। वहाँ मेडिटेशन का प्रोग्राम होते रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम वहाँ दिया जाता है, पर्यावरण के संबंध में उनके साथ बातचीत की जाती है, पेड़ लगाने के बारे में लोगों को बताया जाता है। और महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, ये सशक्तिकरण होना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा काम आपका ये संस्था कर रहा है, हमें बहुत बड़ा गर्व है। तो महिलाओं के लिए तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पर अगर आपकी रहेगी भक्ति, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पर अगर आपकी रहेगी भक्ति, तो जरूर मिल जाएगी आपको मुक्ति। जब मजबूत हो जाएगी देश में नारी शक्ति, जब मजबूत हो जाएगी देश में नारी शक्ति, तो आप पर कोई भी नहीं करेगी शक्ति। तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारी महामहिम किरण बेदी जी है, एक महिला है, लेकिन लड़ने वाली महिला है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला है। और हमें बहुत बड़ा गर्व है कि ये संस्था में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मुझे मालूम है कि अपने भारत देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए एक हिंदू कोड भी लाया था पार्लियामेंट में, लेकिन भारत के पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी नहीं दी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मंत्री पद का इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। अगर माँ शिक्षित हो जाएगी तो पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। तो माँ को शिक्षित करने की भूमिका आप लोग रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज यहाँ हमारे संतोष जी ने, जो पत्रकार भी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है, उन्होंने माउंट आबू को आध्यात्मिक सिटी अनाउंस करने के बारे में बताया है। नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी अनाउंस की है। पूरे भारत में जो जो सिटीज़ है उसको स्मार्ट करने का काम हम कर रहे हैं। तो माउंट आबू को और हम वहाँ स्मार्ट बनाएगी। हमारी सरकार स्मार्ट काम कर रही है। और यहाँ ये जो आध्यात्मिक सिटी, माउंट आबू को आध्यात्मिक सिटी की सूचना आपने की है, मांग की है। मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी साहब से बात करूँगा। और आध्यात्मिक सिटी एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा सेंटर आपका है। ये पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और ये माउंट आबू जो है, ये माउंट आबू हमेशा पूरे दुनिया के याद में रहने वाला माउंट आबू है।
जो भी दुनिया से लोग ये आते हैं वो ये पहाड़ देख कर जाते हैं, और इसीलिए माउंट आबू सिटी को आध्यात्मिक सिटी करने की जो आपकी मांग है, ये बहुत अच्छी मांग है। जरूर हमारी जो भारत सरकार है, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, ओल्ड एज आते हैं, डिसेबल लोग आते हैं, ओबीसी लोग आते हैं, और जो लोगों को मदद की आवश्यकता है उनको मदद करने का मेरा मंत्रालय है। आपको भी मदद करने के लिए मैं आया हूँ। आपके ये जो बहुत बड़ा काम चल रहा है उसका पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि शांति के बगैर विकास नहीं। शांति नहीं रहेगी तो जहाँ जहाँ क्रांति, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, हर बार भारत पर भी इसी तरह के छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। तो मानव को मानव बनाने का काम अगर आप कर रहे तो एक बहुत बड़ा काम है आपका। बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी संस्था, और आपकी संस्था का मुझे बहुत बड़ा गर्व है। आदमी को आदमी बनाना ये बहुत सिंपल काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। उसके दिल की, उसके मन की जो अस्वच्छता है उसको निकालना बहुत बड़ा काम है। हमारी इलेक्शन इतना मुश्किल नहीं है। हम तो जीत जाते हैं, कोई हार भी जाते हैं, लेकिन मानव के मन का जो मैला होता है, वो अस्वच्छता होती है, उसको अहंकार होता है, उसको बाहर निकालना ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम आप कर रहे हैं। आप लोग ये काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर सकते, लेकिन हम भी करेंगे। आप कैसा काम कर रहे हो देखकर हम भी करेंगे। हम भी मतलब मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांति देने का हम काम करेंगे। खाली शांति देने का काम हम नहीं करेंगे, मन को शांति देते देते पूरे भारत में शांति फैलाने का काम हम लोग करेंगे। और उसके लिए जरूर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, या कि राजस्थान की हमारी मैडम जी की सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार, जरूर हम कोशिश करेंगे। तो जो आज आप सब लोग पूरे दुनिया से यहाँ हैं, लगातार 26 तारीख से ये प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। अलग अलग मेहमान आ रहे हैं। मेडिटेशन पर, शांति पर, मानव को मानव बनाने के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में यहाँ चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये 80वें आपके वर्धापन दिन के अवसर पर मैं आप सभी को यहाँ हार्दिक बधाई दे देता हूँ। और ज़रूर आपकी जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए ज़रूर सरकार की तरफ से आध्यात्मिक सिटी तो है ही है, ये तो आपकी मांग है ही है, लेकिन और भी सिटी को जो भी कुछ मदद कर सके वो मदद भारत सरकार के द्वारा करने के लिए ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज ये जो अपना 18th एनिवर्सरी ऑफ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल है, इसको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ भारत सरकार की तरफ से, मेरे मंत्रालय की तरफ से। और जिस पार्टी से मैं आया हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी देश भर में है, दुनिया भर में, उनके तरफ से भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत ही उमंग, उत्साह से भरपूर कर देने वाले आपके शब्द कि नारी जिस दिन जाग जाएगी खोई शक्ति पा जाएगी। सचमुच इस प्यारी धरती की उस दिन किस्मत जाग जाएगी। तो बहुत ही अच्छे विचार रामदास बंधु जी ने हमारे सामने उपस्थित किए।